बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। आज 17 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन अवाम में हम, और टॉपिक जो है वो बड़ा सिंपल है कि इस वक्त सैलाब के बाद दो नैरेटिव पाकिस्तान की सहाफ़ती और सियासी मंडी में सर्कुलेट कर रहे हैं। एक नैरेटिव है कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, एक नैरेटिव है कि हमने महंगाई को बढ़ने नहीं दिया डिस्पाइट द फैक्ट कि कितनी ज़्यादा फ्लैश फ्लडिंग हुई है, सैलाब आए हैं और हालात ख़राब हैं। अब फैसला आवाम बेहतर करेगी कि महंगाई बढ़ी है या कम हुई है, तो हम आवाम के पास हैं। इस वक्त मैं निस्बत रोड लाहौर में मौजूद हूँ। ग्वाल मंडी नून लीग का घर है। इमरान खान ਦੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਕਾਬੇ ਰੋਖ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਜੰਜ ਵੱਟ ਫੇਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਵੱਟ ਫੇਰ ਗਏ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਗਈ ਹੈ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਹਾਵਾ ਹੈ, ਟਿਕਟੋਕ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਧਰ। ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੇ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ? ਸਾਰੋ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਨੇ ਵਹਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਭੇਜੋ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਮੈਡਮ ਥੋੜਾ ਇਧਰ ਆਏ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਆਏ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਝੂਠ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਰੇ। ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਵੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ 2-2000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਮੁਲਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। 40 ਸਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ, 4 ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਵਾਲੇ ਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਨੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਖਲੰਡਰੇ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ? ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੋਰਸਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗੇ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ? ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ? ਗਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕੀ ਵਹਾਓ, ਏਸੀ ਵਹਾਓ, ਪੌਦੇ ਵਹਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰ ਬੈਠਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਹਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੱਲ ਰਵੇ। ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਗੰਦ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਥੱਲੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਗੰਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਗੰਦ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਮਰਦੀ ਪਈ ਆਵਾਮ, ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਨ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੇ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ 200-400 ਅਸੀਂ ਘਰ ਰੋਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ? ਜਿਹਦੀ 30,000 ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ 28,000 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ? ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਮੇਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਖਿਲਾਰਦੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਲ ਟੂ ਆਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਡਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 100-200 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 250 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? 250 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਣਾ? ਇੱਥੋਂ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਰੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰੋ। ਇਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਅੱਜ ਦੌਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਖਲੋਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ आप एक टांग से मजदूर सर हैं। मैं मजदूर कैमरा हाँ, सर मैं मजदूर हाँ, ठीक है। मैं एज जॉब करना वा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 35,000 तनख्वाह, मैं कहांगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं यही कहांगा, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता 35,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 12,000 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਵਿਕੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਚੀਨੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜ਼ਲਾਲਤ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ, ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ 1 ਤੋਲਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ। ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਦੇ ਤੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜਨੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ। 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹ 175-70 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜੋ ਨਾਲੇ ਲੈਣਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲੈਨ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੇ। ਸਰ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੈਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੰਸੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 100% ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ 100% ਛੋਟ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਵੇਖੀ। ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, 4 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਮਰਾਨ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। मैं कहांगा सर बहुत मेहरबानी ਤੇ शुक्रिया। जिस दिन हुक्मरान महंगाई को नीचा कर दें, अपनी शुगर मिलों को कम कर दें, मुझे चौक में लटका देना। चीनी सस्ती कर दें, जो इन माफिया की हैं, मुझे चौक में लटका सर देना। ना इतना बड़ा दावा करते उन्होंने कर देना सर सस्ता। मुझे आप चौक में लटका दें। वाकई आप बुरा ना मानिएगा, लटकाए जाएंगे खराकी तौर पे। सर लटका दें मुझे आप। आज तक इन्होंने चीज को सस्ती की है। आप कह रहे हैं इन्होंने चीनी सस्ती कर दी है, महंगाई खत्म कर दी, आपको चौक में लटका दे। मैंने लटका, महंगाई खत्म कर दें, मुझे चौक में लटका दें। सर ये बात मेरा- वापस ले मेरा लें, सर- इन्होंने करते नहीं है। सर मेरा आप नंबर लिखें, मेरा नाम हटा, मैंने आईडी कार्ड की कॉपी ले, मुझे इधर लमका अपनी दें आप। आईडी अपना नंबर दे, मैं आपका नंबर लिख दो, ताकि मैं ये नहीं है कि चौक में ये लटकाएंगे, सर चौक लेकिन में मैं आपको लटकाएंगे। ये इसलिए बताऊंगा कि आपने आइंदा बड़े दावे नहीं करने। 03 चले जी, मैं इनका नंबर लिख रहा हूँ। हाँ जी, रमजान मेरा नाम है। आपकी आईडी कार्ड की फोटोकॉपी प्रोड्यूसर साहब ले लें। मैं दे देता हूं इनको।
मैं प्रोड्यूसर को दे रहा हूँ, ये ले प्रोड्यूसर साहब इसकी फोटो का, ये मैं आपको कॉल करूंगा, हम अखलाकी तौर पे कहेंगे इतना इन्होंने महंगाई कम कर दी, मुझे जॉब में लटका दिया। और सर करते नहीं है सर नहीं कर सकते, नहीं। और ये मियां नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की आप ही की हुकूमत है सर ये माफिया की हुकूमत है, ये माफिया बात की। वापस ले ले, मैं नंबर डिलीट कर देता हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भी तैयार हूँ, मैं अपनी बात पे रही हूँ। जिस दिन ये महंगाई कर दें खत्म, मैं खुद आपको फोन कर दूंगा, बिलाल भाई मुझे आके लमका दें, मैं खुद आपको कॉल कर दूंगा, बिलाल भाई मुझे आपको लटका दें, उन्होंने महंगाई कम कर दी है। ये हो नहीं सकता, ये माफिया की गवर्नमेंट है, अवाम की, खुदा की कसम, अवाम की गवर्नमेंट नहीं है, खुदा की कसम, ये अवाम की गवर्नमेंट नहीं है। किसी से पूछ लें आप कि अवाम की गवर्नमेंट नहीं है। अवाम की गवर्नमेंट होगी, वो अवाम का सोचेगी, वो महंगाई का सोचेगी, वो बिजली का बिलों का सोचेगी। मैं अभी बिल घर से मंगा के दिखाता हूँ आपको। एक मेरे यूनिट चले हुए 135, उसका बिल है 4,300 रुपया। एक मेरे मीटर के यूनिट चले हुए हैं 170, उसका बिल है 1,900 रुपया है। ये क्या लॉजिक है, मुझे ये बता दें, मैं बिल अभी घर से मंगवा लेता हूँ, आपके घर में पड़े मेरे बिल। ये हमें समझाते ना, ये ऊपर मार रहे हैं, खुदा की कसम ये मार रहे हैं। सर शहबाज शरीफ ने और हुकूमत ने तहैया किया है कि इंसाफ और सस्ता घर मकान कपड़ा आवाम की तहलील सर पर। उनको बिल्कुल तैयार किया हुआ, गरीब एक नहीं रहने देना, गरीब एक नहीं रहने देना, यही तैयार किया हुआ गवर्नमेंट ने। जब वो से आए फोटो हैं, कॉपी कराने जा रहा है, मैं उसे रोक देता सर हूँ। मेरा ओरिजिनल आई कार्ड ले जाए, मैं नया बना लूंगा, कोई मसला नहीं है। मेरा लाइसेंस ले जाए, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाए। मैं वापस ले ले, बाद में रिकॉर्ड हो नहीं जाएगा, चलना नहीं नहीं सर, है। नहीं सर, चली जाए, बिल्कुल चलिए, मैं खुद आपको कॉल करके बुला लूंगा, बिलाल भाई, ऐसी कौन सी बात है। आपको चौक पे ओ, लटका मैं दे। मर्द हूँ, लक्ष्मी चौक में मेरी रिहायश है, मैं मर्द हूँ, मुझे आप लमका दें, मैं खुद आपको कॉल करूँगा, लो भाई मुझे आके लमका दें, मैं तैयार हूँ लटकने के लिए। इन्होंने महंगाई कम कर दी सर है। 25 करोड़ आवाम तो पूरी उम्मीद है, आप ही सिर्फ मायूस हैं। कोई 25 करोड़ आवाम नहीं है, ना कोई आवाम नहीं है, कोई खुदा की कसम कोई 25 करोड़ आवाम मुतमिन नहीं है। जिन्होंने इनको जो इनके चहेते हैं, जिन्होंने इनको नवाजा हुआ है, जिनको नौकरी दी हुई है, जो इनके टाउट हैं, जो पटवारी कहते हैं जिनको, वो ही है बस, कोई 25 करोड़ आवाम नहीं है। मुझे इधर मुझे 5 साल में नून लीग के सपोर्टर दिखा दे, कोई इनकी हमायत करें, कोई गवर्नमेंट की हमायत करें, तो सारे खड़े हुए नून लीग का इलाका इनका गढ़ है, तो 5 साल में मुझे दिखा दें ये इनको कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। आवाम खुदा की कसम सुबह जीती है, रात को मरती है। इतने बुरे हालात हो गए हैं, खुदा की कसम इतने बुरे हालात हो गए हैं, आवाम बेबस हो चुकी है। मैंने आगे भी इंशाल्लाह का बताया था कि इस्लाम में अगर खुदकुशी हराम ना होती ना, खुदा की कसम जो वक्त जा रहा ना, लाखों मुसलमान खुदा की कसम खुदकुशी कर चुके होते, इतने बेबस हो चुके हैं। कोई बच्चों की जिन्हें शादियाँ करनी थी वो शादियाँ नहीं कर सकते हैं, इतनी महंगाई हो गई है। मुर्गी क्या रेट थी मुझे ये बताएं, मुर्गी 700 रुपये, 650 रुपये, 700 रुपये किलो होगी थी, 400 रुपये थे। महंगाई ज़्यादा हुई है, कम हुई है, महंगाई ज़्यादा हुई है। मैं एक पब्लिक हूँ, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा। ये सलाब आया जी, अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर अजाब आया है। गवर्नमेंटों ने कोई डिसिप्लिन तरीक़ेकार ही नहीं है यार, उनको सबको पता सलाब आता है, इनका कोई तबादल करे, कुछ भी नहीं करते जी। सर आपके सीएम हर जगह गई हैं और वो क्या सर करें? जाने टिकटॉक बना रही हैं, टिकटॉक बनाने गई हैं, फोटो सेशन करवाने गई हैं, मुझे ये बताएं, फोटो सेशन करवाने वो गई हैं। कहती हैं कमरे से निकले, उनका परसों एक मैं बयान पा रहा था, कमरे से निकल के तैयार होकर तपती धूप में आप जब जाएं तो लोग इसे अगर टिकटॉक कहते हैं तो ऐसा खुद कर लें, इतनी खिदमत वो खुद कर लें। उनकी बात का कोई लबे लबा मफहूम यही था। सर वो सीएम है, कह सकती हैं, आप पब्लिक से पूछे ना, जिधर सलाब आया उनको क्या सहूलतें मिली हैं, उनको क्या इमदाद पहुंची है, आप उनसे जाके पूछे ना। हमारे अजीज रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, खुदा की कसम किसी के पास कुछ भी नहीं पहुंचा। ये गड़ा सिंह वाले मेरे सकी फुफो रहती है, 1 रुपये की इमदाद उनको नहीं पहुंची, खुदा की कसम 1 रुपये की इमदाद नहीं पहुंची उनको। गड़ा सिंह में मेरी सकी फुफो रहती है। पब्लिक बेरोजगार हुई पई है, कोई कारोबार नहीं कर, बिल्कुल बेरोजगार हुई पई है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ कोरोना च हालात बेहतर सी, सैलाब च बेहतर नहीं हुए। नहीं सलाब च महंगाई डबल हो गई है। कोरोना जी खुदा की कसम हर चीज़ जी ना अपने रेट नहीं थी बदे कोरोना के 12,000 रुपया इमरान खान ने लोगों ने दिता, बिजली के बिल फ्री हो गए, उनके बजाय 5-6 महीने लोगों की दुकाना बंद रही हैं, उनके बावजूद हूँ तो पब्लिक फिरती पई है, दुकाना खुलियां ने, उनके बावजूद चीज़ जी डबल हो गई है। ये जो माफिया ना माफिया पाकिस्तान का सब तो ताकतवर जो माफिया है, जिन्हें माफिया ने लगाम नहीं दोगे पाकिस्तान कुछ ठीक नहीं होएगा। बहुत ताकतवर है माफिया पाकिस्तान का, बहुत ताकतवर है माफिया, सारे इन्हों के ने
ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ, ਆਟੇ ਦੀ ਮਿੱਲਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਗੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮਾਫੀਆ ਤਾਕਤਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਸੁਬਾਹ ਚਾਹੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਚਾਹੇ ਦੋ ਵੀ ਘੁੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਰ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਆਪਣੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਮਿੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਚੀਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਡੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਪੀਡੀਆਈ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਸਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਲੰਡਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੈਠੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋ। ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਮਾਦਗਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀ ਬਿੱਲ ਆਏ, 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਸਰ ਉਹੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁਲ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ 44,000 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ 78,000 ਰੁਪਈਆ, 97,000 ਕਰ ਰਹਾ ਤੂੰ ਸਮਾਂ 97,000 94,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। 94,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। 3.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਵਿੱਚ 72 ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਿਦਮਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਲਵਾਬ ਆਮ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਇੱਕ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲਈ। ਸਰੀਆ ਬਜਰੀ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰੀਆ ਬਜਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਰ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾਓ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਸ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਬਣਦੀ ਜੇ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਲੈਣਾ ਨੇ। ਸਿਰਫ 2 ਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਊਟਡੋਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰਚੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰਚੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਅਪਣਾਵਣ। ਮੇਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰਚੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਾਓ ਈਕੋ ਕਰਵਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਕੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 40ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ तो फिर आ जाएंगे 40 दिन बाद ईको। सलाब के बाद जो सी महंगाई है ना, अल्लाह को हासिल ना से जान के कह रहा हूँ, हम पब्लिक हैं, रोज़ाना दुकानों पे जाते हैं, रोज़ाना मंडियों में जाते हैं, घर का सामान लेने खुद हम जाते हैं, हम किसी को नहीं भेजते, ठीक है। खुद जाते हैं। खुदा की कसम महंगाई डबल हो गई है। अल्लाह को हासिल ना से जान के कह रहा हूँ, महंगाई डबल हो गई है। 3,000 रुपये मन गंदम 1 महीना पहले मैंने ली थी। आटा हम खुद गंदम लेके आटा खुद पिसाई कराते हैं घर के लिए। बाजार में पता नहीं आटा 1 नंबर है कि 2 नंबर है, इसका कोई एतबार नहीं है। अब मैं उस दिन गया हूँ 8 दिन पहले, 4,000 रुपया मन गंदम मैंने खरीद के लाया भगवानपुरे से। 4,000 रुपये मन। गवर्नमेंट का रेट गवर्नमेंट ने निकाला है 2200-2600 निकाला था, 2600 ने गवर्नमेंट रेट निकाला, 3,000 रुपये। मार्केट में 4,000 रुपये मन गंदम मिल रही है। कोई दुकानदार कहता है, कोई दुकानदार कहता नहीं है। मैं ये एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेहनत किसान करते हैं कोई नहीं करता। अगर किसान ये पाकिस्तान में इतना माफिया, जितना माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है ना, कोई दुनिया में नहीं करता। मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कहता हूँ, अगर पाकिस्तान 2 साल
गंदम चावल पैदा ना करे। इनके पास इतना स्टॉक है माफिया के पास, ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये अपने रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इसमें बेबस हो चुकी है। कोई गवर्नमेंट नामो निशान गवर्नमेंट का नज़र नहीं आ रहा है। एक दुकानदार रेट 4,000 रुपये माना गंदम, एक का 3200 रुपया माना है, पहले था एक महीने के बाद 3200 रुपया। अब 3800 मांग रहे हैं, कोई 4000 मांग रहे हैं, कोई 3600 मांग रहे हैं, कोई 4200 मांग रहे हैं। एक मार्केट में चले जाए भगवानपुरे में। बुरा ना मानिएगा, आपने कहा खुदा की कसम खा के कहता हूँ महंगाई डबल हो गई है, तो मैं भी हल्फिया कहता हूँ कि जिस वक्त हमारी सीएम साहबा जापान गई हैं, अभी 1.5-2 महीने भी मुश्किल से नहीं हुए, उन्होंने वहाँ जाके कहा 38 से 3% पे महंगाई आ गई है। मैं इसी बात पर, आटा किधर गया है मुझे बता दें, किधर गंदम किधर चलेगी? 1000 रुपये मन गंदम ज़्यादा हो गई है। प्याज था 50 रुपये किलो, प्याज हो गया 100 रुपये किलो। टमाटर थे 60 रुपये किलो, टमाटर हो गए हैं 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। मुझे बताएं महंगाई कम की ज़्यादा हुई है। घी किधर चला गया है? घी 540 रुपये का किलो, मैं खुदा की कसम कल लेके आया हूँ। 504 रुपये किलो कल लाया, मैं 4 पैकेट लेके आया था, कल 1 पैकेट लेके आया। ये भी तो हो सकता है पीटीआई वालों की साजिश हो ताकि हुकूमत को बदनाम किया जाए। साजिश कोई भी नहीं करता, ये काम होती है, जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की, माफिया को कंट्रोल करना। इनके माफिया के खात्मे के लिए आ गई हैं, माफिया का तो खात्मा समझो। 2-2.5-3.5 साल हो गया, खात्मा किया कब इन्होंने? ये तो अपने टिकटॉक बनाने के लिए बाजार में आते हैं, ये अपने फोटो सेशन कराने के लिए बाजार में आते हैं। जी हमें नहीं चाहिए फोटो सेशन, हमें तो महंगाई कम चाहिए। इनके घर आए हैं मुनव्वर सदीक आपी हैं, तो इनका एक इशू है, वो मैं चाहूँगा कि आप भी सुने और जो बाब इख्तियार है उसको रिजॉल्व करें। जी आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी बहन है छोटी गुलशन, ये उसका आईडी कार्ड है, वो डिसेबल है, तो मैं उनके सर्टिफिकेट 2 बने हुए हैं डिसेबल के, एक मेंटल हॉस्पिटल में है और एक सर्विस हॉस्पिटल का है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने माजूर लोगों के लिए जो हिम्मत कार्ड इशू किए हैं ना, उस सिलसिले में मैं बैतुल माल शिमला पहाड़ी गई, तो उन्होंने मेरे वो कागज़ चेक किए, उन्होंने कहा कि ये ऑनलाइन नहीं है। उन्होंने जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट करके मुझे दिया है, उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया है कि फिट टू वर्क, लेकिन मैं ये दिखाना चाहूँगी कि मेरी बहन कहाँ पे फिट है। ये उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट इशू किया है, इसके ऊपर लिख दिया है फिट टू वर्क, यानी वो फिट है, वो फिट है। मैं अपनी बहन आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरी बहन, आप लोग बताएं कि कहाँ से फिट है। मुझे कोई 2 से 3 महीने हो गए हैं मुझे सर्विस हॉस्पिटल बैतुल माल में जलील होते हुए, तो उसने इसको लिख दिया कि ये फिट है। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये फिट है? क्या ये हिम्मत कार्ड के काबिल नहीं है, लायक नहीं है, इसका हिम्मत कार्ड नहीं बनना चाहिए? मरियम बीबी किन माजूर लोगों के हिम्मत कार्ड बना रही है? ये माजूर नहीं है। बहुत बुरे हालात हमारे आए हैं। मैंने उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब से, मीडिया मेरे घर आया था, मैंने अपील की थी कि आप मेरे साथ तावन करें, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। आज मैं मरियम बीबी से कहूंगी, मैं उसकी बात कारकुनों से बेहद मोहब्बत करती हूँ, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। मियां नवाज शरीफ से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। मुझे ये गिला है मरियम बीबी से कि वो लोगों के लिए, गरीबों के लिए, हर बंदे के लिए वो काम कर रही हैं। नजर भी आ रहा है लोगों को कि वो काम कर रही हैं, लेकिन वो अपने छोटे वर्करों के लिए कुछ नहीं कर रही। जो मेरे जैसे छोटे अदना कारकुन है ना, उनको वो पूछती नहीं है, वो देखती नहीं है, उनसे कभी मिलती नहीं है। उनको मिलना चाहिए ना, जाहिर बात है हम लोग मेहनत करते हैं तो ये लोग बरसरे इक़्तिदार आते हैं। ये देखें, ये मेरी बहन डिसेबल नहीं है। हाँ, तो फिर वो मुदस्सर ने क्यों नहीं इसको लिखा? लिखना चाहिए था ना। ये तो आपकी हुकूमत को इसको देखना चाहिए ना, मुदस्सर को। आप लोगों ने, मैं तो मरियम बीबी से कहूंगी कि वो अगर वो ये उसका मेरा ये प्रोग्राम मेरी बहन उसकी नजरों के सामने से गुजरे, तो वो इस बात का एक्शन ले कि मुदस्सर इस सीट के काबिल ही नहीं है कि मुदस्सर को जिस सीट पे बिठा के उन्होंने ये ऑनलाइन करने के लिए बिठाया हुआ है, वो तो वहां जाके आप प्रोग्राम करें। आप लोगों को देखेंगे कि वहां पे आके इससे भी ज्यादा बुरी हालत के वो मजदूर लोग हैं जो लेके आते हैं, बच्चे बड़े, वो जलील हो रहे हैं। आपका कोई भाई, आपकी शादी? मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे वालिदैन की डेथ हो गई है। ये मेरी छोटी बहन है, हम दोनों बहनें हैं। मैं मजदूरी करती हूँ तो अपना घर चलाती हूँ। मैं नून लीग की काउंसलर हूँ और नून लीग की 93 से।
यूसी 93 से मलक जीशान साहब के साथ। और नून लीग के काउंसलर के साथ ये सलूक हो रहा है, हाँ जी। तो आप फिर भी नून लीग के साथ? मैं फिर भी नून लीग के साथ हूँ। मैं नून लीग के साथ इसलिए हूँ कि हम मियाँ नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं। मैं मियाँ नवाज शरीफ के लिए काम करती हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को जब आए हैं ना, तो मुझे पार्टी से मेरे एमएनए साहब ने मुझे 2 गाड़ियां दी। इनको अंदर भेज दे। 2 गाड़ियां दी बीबियों को लेके जाने के लिए। तो जब मियां साहब मेरे सामने आए, वो स्टेज पे आए, हम वहाँ ग्राउंड में मैदान में मौजूद थे, यादगार में, तो मुझ पे इस तरह की कैफियत तारी हो गई कि मुझे रोना आ गया और मैं गिर गई। मैं बेहोश हो गई। मेरे साथ जो बीबियां थी उन्होंने मुझे पानी मेरे ऊपर फेंका, मुझे मतलब के होश दिलाई कि इतनी पागल ना हो कि मियां साहब पाकिस्तान आ गए हैं, ठीक है। आपने जब मियां साहब को देखा बेहोश हो गई? मैं बेहोश। जैसे आपकी अजमा रोई जा रही थी, आपकी मरियम औरंगजेब रो रही हम भी थी, रो रहे थे, सारे रोई जा खुशी रहे से थे। रो रहे थे। मियां साहब को देख के एक अजीब सी कैफियत। अजीब सी कैफियत होती है। मियां साहब बहुत नाइस। बाजी होता क्या जो आप रो पड़ती हैं? मियां साहब बहुत नाइस है। ये हमारे हालात है। नहीं, बयान के आपके ये हालात हैं, लेकिन अभी भी मियां साहब की मोहब्बत हावी हो गई। वो तो शुरू से है। आप किसी से अगर बेलौस मुखलिस मोहब्बत करते हैं ना, वो चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे, आपके ऊपर से कुछ भी गुजर जाए, आपकी वो मोहब्बत नहीं खत्म होगी। अगर आपको सही मुखलिस बेलौस मोहब्बत है, मुझे अपनी पार्टी से मियां साहब की वजह से मोहब्बत है। जब मियां साहब पाकिस्तान में होते हैं आपकी क्या कैफियत है? वो आजकल बरतानिया इलाज की घर से, वो आपकी क्या कैफियत है? मेरी उनके लिए दुआएं हैं। मेरी उनके लिए दुआएं हैं कि मियां साहब को अल्लाह पाक जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे और वो ठीक होके पाकिस्तान आए। बाजी एक सवाल करना तो बुरा ना माने, आज तक पाकिस्तान में ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सका जहाँ मियां साहब का इलाज हो सके? क्यों नहीं बन सका? बना तो रहे हैं आप। वो तो बाजी कैंसर का बंद है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं बन सका जब उनके जो सारे टेस्ट हैं, जो सारी मेडिसिन है, जो सारा मतलब उनका, वो शुरू से बाहर से करते हैं, तो इसलिए उनको उधर ही मतलब क्या है, तो फिर इसलिए वो उधर से करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल है। तो मियां साहब फिर यहाँ से इलाज क्यों नहीं कराते? वो तो उनकी मर्जी है। मैं अपने लीडर मियां नवाज शरीफ से बहुत मोहब्बत करती हूँ। कितनी मोहब्बत है? चले पहले उनकी मोहब्बत वो सामने। मेरे कायद पसंदीदा कायद है। पसंदीदा क्या? हाँ, मेरे पसंदीदा कायद है। उनके लिए अपनी जान, अपना तन मन सब कुछ वार सकते हैं। अगर एक तरफ नवाज शरीफ साहब हो, एक तरफ आपकी बहन हो, आप किनके लिए जाएंगे? अब ये बात मोहब्बतों की बात है, तो हाँ, कौन से- मैं मियां नवाज शरीफ को अहमियत दूंगी। इनके आगे मियां नवाज शरीफ हाँ, को। मियां नवाज शरीफ को मोहब्बत दूंगी। इतना प्यार है उनसे? इतना प्यार है। अभी से नहीं है, मैं उस वक्त स्टूडेंट थी जब वो पहली दफा वजीर आजम बने थे, तब से है। तो आप मैं 2-3 बार उनसे मिलने भी आई थी लाहौर। हम उस वक्त उकाड़ा में रहते थे, तो मैं उनसे मिल नहीं सकी थी, वो इस्लामाबाद में थे। तो आप तो उनका नाम लेके आप बीदा हो गई हैं। आपकी आंखों के आंसू उतारे, आपको याद आ रही है मियां साहब की? मियां साहब हमारे ना, वो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, हमारे लीडर। जब उनके प्लेटलेट्स गिरे थे क्या हालत थी आपकी? ऐसे ही थे हम। नहीं, जब 2000 पे उनके प्लेटलेट्स आ गए थे, आपकी क्या कैफियत थी, क्या फील थी? हम तो दुआएं मांग रहे थे। ऐसा तो नहीं अभी था? उनके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह अभी उनको फिर उनकी- सेहत, हाँ, जिंदगी, तंदुरुस्ती अभी दे। अब वो दोबारा उनकी तबीयत खराब है, वो हाँ, अल्लाह पाक बरतानिया उनको गए हैं सेहत, इलाज जिंदगी, के लिए। तंदुरुस्ती दे और वो बरतानिया इलाज कायम के लिए दायम गए रहे। हैं। तो आपको फिक्र है उनकी? हाँ, फिक्र है। हम दुआएं मांगते हैं। मैं तो दुआएं मांगती हूँ, मुझे किसी का नहीं पता। कभी ऐसी दुआ मांगी मेरी उम्र भी मियां नवाज शरीफ को लग जाए? हाँ, लग जाए। हमारी उम्र भी अल्लाह पाक मियां नवाज शरीफ को लगा दे। हमारी से मुराद इनकी भी और आप दोनों की। हाँ, हम 2 ही बहन हैं। मियां नवाज शरीफ को लग जाए। मियां नवाज शरीफ के जो चाहने वाले हैं, जो मुखलिस चाहने वाले हैं, वो ऐसे ही हैं। यही समझ ले कि वो पागल है मियां साहब की पार्टी के लिए, मियां साहब के लिए, मतलब कि इनके लिए। बाजी इनसे आपका खूनी रिश्ता है, मेरा इनसे कोई रिश्ता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ इनसे ज्यादा क्यों अजीज है आपको? बस वो मोहब्बत होती है ना बंदे को। जब वालिदैन हयात थे, मेरी बात सुने, जरूरी नहीं होता कि आपका किसी के साथ खूनी रिश्ता है तो आप उससे मोहब्बत आप करते ये हैं। बात हल्फिया कहती हैं कि आपको अपनी बहन से ज्यादा नवाज शरीफ? हाँ, मुझे मियां नवाज शरीफ ज्यादा अजीज है। मियां नवाज शरीफ साहब से जो आपको मोहब्बत है, तो ये सिस्टम भी तो उन्होंने ठीक करना है। उनकी बेटी की हुकूमत है पंजाब में, मियां शहबाज साहब, बीच में बुजदार का गंदा दौर आया था। चलें, बुजदार नलायक आदमी का गंदा दौर आया था, मैं मानता हूँ, लेकिन ओवरऑल ये नून लीग का सिस्टम है। नून लीग का सिस्टम है, लेकिन ये भी तो देखे ना, मरियम बीबी बहुत कुछ कर रही है।
उसने बहुत से प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, उसने लोगों के घर बनवाए हैं, उसने लोगों के मतलब कि ये बच्चों, इस तरह के बच्चों के लिए उसने मजदूर बच्चों के लिए हिम्मत कार्ड इशू किए हैं। और भी आपकी बहुत बहन सारे को क्यों नहीं मिला? मेरी बहन को क्यों नहीं मिला? मुझे जब पता चला, मैं कागज लेके बैतुल माल गई हूँ, तो ये उन्होंने थोड़ी बनाना है, ये तो नीचे वाले अमले ने बनाना है ना। सिस्टम बेहतर किसने करना है? वो तो हुकामे बाला नहीं करना है, वो कर हुक्कामे रहे हैं। वाला मैं हूँ कि आप है? नहीं, ना मैं हूँ ना आप है, वो तो वो ही है, कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कौन लीड कर रहा है? गवर्नमेंट नून लीग लीड कर रही है, मरियम नवाज साहबा। मरियम नवाज शरीफ साहबा। साहबा तो आप एज ए काउंसलर आप नहीं समझती कि इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है? मैं समझती हूँ कि सिस्टम को बहुत ज्यादा बेहतर होने की जरूरत है, लेकिन उनको जिस तरह बताया जाता है, जिस तरह गाइड किया जाता है, वो वैसे कर रही हैं काम, वो अच्छे कर रही हैं। ठीक है बाजी, हाँ, वो काम वो बहुत अच्छे कर रही हैं मरियम नवाज साहबा। लोग उससे उनसे काफी खुश हैं कि वो काम कर रही हैं। काम वो अच्छे कर रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता नीचे करप्शन है। बुजदार तो बिरा गरा करके चला गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आम आदमी के नीचे सुनवाई नहीं है। देखें, पता तो सारा ही होता है, मैं ये नहीं कहती कि पता नहीं आप है। मेरी बहन है, आप मेरी पता आपी की होता है, जगह है। सारा एक पता आपसे होता सवाल है, रखता ये हूं। बात गलत है। एक आपसे सवाल रखता हूँ, 2 वक्तों का टाइम है, बल्कि अब जोहर का टाइम होने लगा, हमने सबने अल्लाह के हजूर जाना है, जाना है, बिल्कुल जवाब देना है, जवाब देना है। अल्लाह ताला आसानी वाले मामलात करे। क्या नाम आपने बताया? मुदस्सर। मुदस्सर कौन सा महकमा वाला? बैतुल हॉस्पिटल में बैतुल माल। मुदस्सर साहब, सर्विस हॉस्पिटल में आप बैतुल माल बैठते हैं, अगर ये बाजी फिट है ना, तो फिर हम सब अनफिट हैं। अगर ये फिट हैं तो फिर सब हम अनफिट हैं। वैसे तो हम बातें इतनी नहीं कर रहे जो फिट लोग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अगर ये फिट हैं तो फिर हम सब अनफिट हैं। खुदा का खौफ करें सर। वो किसी पे नहीं करता खुदा का खौफ। इतने मजदूर लोग लेके आते हैं, इतनी बुरी कंडीशन में है, वो सारा दिन दूर दूर से लोग आते हैं, जलील होके लोग चले जाते हैं, वो किसी की बात ही नहीं सुनता, अपनी मर्जी से वो काम करता है। ऐसी बाजी जिनको अपने वालदैन से आगे भी मियां नवाज शरीफ नजर आते हैं, अपनी बहन से आगे भी, अपनी ज़ात से आगे भी, जो ये दुआ करती है कि मेरी और मेरी बहन की उम्र भी उनको लगती नहीं बाजी, इनका ना आप कहें, इनका ना आप कहें, चले इनकी जो ये दुआ करें मेरी मेरी बहन की उम्र भी लग जाए, तो अब ये देख लें कि इनका काम इस सिस्टम में नहीं हो रहा। ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਟਾ ਲੈਣੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਾ ਲੈ ਆਈਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਭਾ ਵਿਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਆਨੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੇਚ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਚਾਚੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਹੜੀ ਘੁੰਮੇ ਬੈਠੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਟਾ ਦੀ ਫਲ ਚੁੱਕੋ ਓਏ, ਲਟਾ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੇੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਂ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਰੇੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਰੇ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਮਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ? ਉਹ ਮਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਚਲੋ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਘਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਮਰੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਦਾ ਚਾਚੂ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਸਫਾਈ ਨੇ। ਕਰੇਗੀ, ਮਰੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁਕਵਾਉਂਦੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ। ਓਏ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਚਾਚੂ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜੋ ਕੋ ਮਾਡੋ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਫੰਡ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। क्यों मियां नहीं? शहबाज साहब ने क्या क्यों हम नहीं अपनी फंड उड़ान आया? आप भरेंगे। क्यों नहीं फंड आया? फंड खा रही है घूम, खा रही फंड खा रही है, और कौन खा रहा ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਿਲਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ है? ਨੇ। नहीं कोई खवाना नहीं गा, चिकन वाले से गए सब कुछ। ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਵੇਖਣਾ, ਅਸਲੀ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। मैं तेन मैं बिल्कुल सही कह रहा, हुकूमत पैसा खा रही है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਿਦਮਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? और यार कोई खिदमत नहीं हो रही, टैक्स बिल आने खिदमत हो रही है।
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਪੱਖਾ ਬਾਲੋਗੇ, ਏਸੀ ਬਾਲੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਕੂਮਤ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਆ ਵੀ ਮਾਲ ਖਾ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਮਾਲ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਹੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਲੁੱਟਦੀ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਛ CM ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗਾ, ਕੁਛ CM ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੀਮਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੇ ਕਰਦੇ ਚਾਹਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸਾਡੇ ਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਮੇਥੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਅਦਰਕ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਟਮਾਟਰ 200-250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇ, ਅਦਰਕ 600-700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸਸਤੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਰ ਘੁੰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਘਟਾ ਦੇਣੀ? ਬਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਬਸ। ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਸਰ ਅੱਧੀ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਅੱਧੀ ਆਵਾਮ ਉਂਝੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਖੀ ਹੈ? 5000 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਤੀ ਉਹਨੇ, ਬਾਕੀ 3000 ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਚ ਲਈਦਾ ਸੀ ਮਾਲ, ਹੁਣ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਬਸ। ਇਹ ਰੇੜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਰੋਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੱਗੀਆਂ ਪੁੱਲ ਤੇ ਰੇੜੀ ਲਵਾਈ, ਇੰਨੀ ਰੇੜੀ ਲਵਾਈ, ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਮਰ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਈ ਹੈ? ਸਗੀਆਂ ਪੁੱਲ ਤੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲੀ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲਾਣ ਦੇਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲਾਣ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੇੜੀ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਤੀਸਰੀ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ 15000 ਰੁਪਏ ਦੀ। 2 ਰੇੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾਈਆਂ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नहीं सानू तो आर्डर आए ने कुछ भी नहीं देना। यूथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल। जी जी अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। छोटे भाई मुझे ये बताएं, सैलाब की मैनेजमेंट हुकूमत ने कैसी की है, और पोस्ट सैलाब इरा, अब सैलाब के बाद का जो एक इरा शुरू हो चुका हुआ है, जो पीरियड शुरू हो चुका हुआ है, हाउ डू यू सी इट? महंगाई में कमी आएगी या ज़्यादा होगी, या हुकूमत ने कंट्रोल किया? देखिए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल शफीक। मोहम्मद बिलाल शफीक। बिलाल भाई देखें कि ना मैं बेसिकली ना काम करता हूँ, मेरा काम है एसी फ्रिजों का, ठीक है। मैं एक मैकेनिक टेक्नीशियन हूँ, काम कर रहा हूँ ऑलरेडी मार्केट में, ठीक है। तो सैलाब की बात की अगर आप मेरे से पूछें ना, ठीक है, सैलाब से पहले जो है ना चंद दिन हमारे डाउनफॉल थे काम के, कि बारिशें भी थी, सब कुछ था। अभी सैलाब के बाद अगर आप देखें ना तो काम चलना चाहिए। गर्मी ज़्यादा हो गई है, हर तरफ आप देखें, आपसे यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, पसीने हैं आपके, ठीक है, लेकिन हमारा काम डाउन के डाउन जा रहा है, नीचे से नीचे। मेरा एक कस्टमर है, कल मैं उनके घर गया हूँ काम करने, छोटा सा, वो उसकी फैक्ट्री है। वो कहते हैं जी वो दाना बना के ना बेचते हैं, रिसाइकिल करते हैं सामान अपना। वो कहते हैं मैंने पूरे महीने के अंदर सिर्फ 2 किलो सेल किया है। सिर्फ 2 किलो जो उसकी प्रोडक्शन है ना, हर माह कम से कम उनका 30 से 40 टन सामान सेल होता है, माल दाना सिर्फ 2 किलो सेल? सिर्फ 2 किलो सेल किया, वो भी किसी को एज ए सैंपल सेंड किया है। वो 1 महीना जो बंदा फैक्ट्री का ओनर चीज़ नहीं उसने सेल की, वो बताएं कि उसका जब काम नहीं चलेगा हमारा कैसे चलेगा?
जब उसके घर कोई आमदन नहीं आएगी, ठीक है, वो हमें घर बुलाएगा कि आए हमारा काम करके जाए, कभी भी नहीं बुलाएगा। सर गवर्नमेंट तो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कि हम ये नहीं कहते गवर्नमेंट गुर्बत का खात्मा कर दिया। आपकी जगह पे बिल्कुल आप अपनी जगह पे राइट पे हैं कि हो सकता है गवर्नमेंट ने खात्मा कर दिया हो गुर्बत का, लेकिन ये जो मजदूर लगा हुआ है क्यों इधर लगा हुआ है? 700-800 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी है इसकी, ये गुर्बत है, गरीब बंदे इस वजह से इधर लगा हुआ है। ये आप गरीब बंदे से जाके पूछे कि गुर्बत खत्म हुई है या और बढ़ गई है? जो गरीब बंदा वो पिस रहा है, रोज का रोज नीचे से नीचे नीचे से नीचे जा रहा है। अभी आप कुछ वक्त पीछे चले गए ना, ठीक है, तो जब से मैंने बेसिकली होश संभाली है ना, मैं अभी बचा हूँ, कोई इतनी एज नहीं है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मैंने नूनगी का पिछला दौर देखा है 2013 के बाद। उसके बाद जो है ना महंगाई बहुत नीचे आई, माना मैंने बहुत नीचे आई, कारोबार बहुत ऊपर गया है, लोगों ने बहुत काम किया है। उस वक्त 160 रुपये किलो सूफी आग मैं खुद लेके आया हूँ, 160 रुपये किलो की। उस वक्त इस मजदूर की लेबर थी 800 रुपया 700 रुपया, अभी इसकी है 1100 रुपया। कितना फर्क आ गया? 200-300 का। 200-300 का। और आप घी कहने चले जाए 550-600 का है, कितना फर्क आ गया? कई गुना 3-4 गुना है, 3-4x ऊपर चला गया है। वो नहीं आपकी गवर्नमेंट देख रही। हम अगर आप देखें ना, मैं बेसिकली खुद जो है ना, मेरे वालिद साहब मेरे दादा हमने शुरू से नूनगी को बड़ी सपोर्ट करते आ रहे हैं, ठीक है, हमारा पूरा गाड़ी करता था। मैं बेसिकली न्यूट्रल बंदा हूँ, मैं ना पीटीए की तरफ हूँ, ना नूनगी की तरफ हूँ, ना किसी और लीग की तरफ हूँ, क्योंकि हर बंदा जो है ना बाद में अभी इनका बगा क्या मसाल है कि हमारे आपके सामने हम दोनों गुथम गुथी हैं, गाड़ियाँ हैं, जब आपने चले जाना ना हम इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है। यही घूमते होती हैं कि जब इलेक्शन होने होते हैं ना, उससे पहले कहते हैं कि फलाना चोर है, वो चोर है, हम उसे लाएंगे, घसीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वही होता है, बाद में जो है ना जफ्फियाँ डाल के घूम फिर रहे होते हैं, बाद में कहते हैं इकट्ठी हुकूमत बनाते हैं, ये कर लें, वो कर लें। तो कारोबार देखें कि आप गरीब आदमी को क्या दे रहे हो बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं दे रहे। मेरा एक नेबर है, उसने वो बहुत ही गरीब है, वो 3 फैमिली है, 2 मरले के घर में रह रहे हैं, ठीक है, टोटल उनके घर 2 कमरे हैं, ठीक है, और 3 फैमिली हैं, एक वालिद है, ठीक है, 2 बच्चे हैं, उनकी शादी हुई है, उनके आगे से बच्चे हैं, वो किस तरह उधर गुजर बसर करें? कर सकते हैं? 2 कमरे, वो अपने अम्मी अबू को उधर रखें, खुद दोनों उधर रहें, घर में रहें, बाहर रहें, क्या सिस्टम वो करें? है कि नहीं बात सोचने वाली? उसने अभी बंदे ने ना बड़ी मेहनत मशक्कत करके पट्टे पे काम करता है, पट्टे से कुछ लोन लेके ना, पट्टे का भी ये जो है ना इधर हमारा कल्चर बड़ा चल गया कि बंदा बस जगह आ गया वो आ गया, बुझा नहीं सकता कोई भी उनसे ना। ये भी एक माफ़ी है, हर तरह की माफ़ी है। अगर आप अंदर जाए ना थोड़ा सा, तो वो बंदे ने ना कर्ज लेके ना अभी थोड़ी सी जगह ली है, 2 मरले के 2.5 मरले जगह ली है उसने। वो जगह टोटल उसने ली है 7 लाख रुपए की, उसके रजिस्ट्री के ऊपर उसका खर्चा आ रहा है जी 5 लाख रुपया, ठीक है। और उसी जगह पे मैंने 5 साल पहले जगह ली है, उसके साथ दोबारा मैंने 60,000 रुपये में 5 साल पहले रजिस्ट्री कराई थी। अभी क्या हो गया कि 5 लाख रुपया चढ़ गया? किस चीज़ का? क्या कर रहे हो आप? फिर इमरान खान की हुकूमत आई ना, उन्होंने हर चीज़ ऑनलाइन की, ठीक है, अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमें मिलना चाहिए ऑनलाइन। एक बंदा टैक्स दे रहा है, इधर मेरे साथ बात कई दफ़ा इस तरह है, मैंने हेलमेट पकड़ा हुआ है ना, मैं गुजर रहा हूँ रोड से, कई दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ है, 1-2 दफ़ा नहीं, ठीक है। हम काम करने वाले बंदे हैं, जल्दी में बंदा भूल भी सकता है। मैं हेलमेट भूल गया हूँ, किसी के घर काम करने गया हूँ, उधर भूल गया हूँ, मार्केट से सामान लेना था, निकला हूँ बाहर, आगे वाटन वगन हो गया, आ जाए जी आपकी बाइक बंद होगी, आपने हेलमेट नहीं पहनना, बाइक बंद हो जाएगी, आ जाए। मेरे सामने उधर से वकील गुजर के जा रहा है, उसके साथ 2 बंदे हैं, अस्सलाम वालेकुम, जाए सर। ये क्या इंसाफ है? आप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत हमें इंसाफ प्रोवाइड कर रही है, ये इंसाफ है? मेरे साथ 5 से 6 दफ़ा इस तरह हो गया कि गन पॉइंट के ऊपर मुझे रोक के रोड के ऊपर, ठीक है, मेरा मोबाइल, मेरा पर्स, हर चीज़ ले ली गई। मैं गया हूँ हुकूमत के पास, ठीक है, थाने कचहरी गया हूँ, उन्होंने कहा कि ओ जी साड़ी फीस से दो, हमने आपकी दरख्वास्त लिखनी है, FIR करनी है, हमारी फ़ीस तो दो। वो बंदा जाएगा? नहीं जाएगा। मैं बेसिकली मेरी ना शेखपुरे में टायर की शॉप थी, ठीक है, और बहुत डाउनफॉल आया है, अभी अलहमदुलिल्लाह किसी ने सपोर्ट नहीं की, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने फिर भी जो है ना बड़ी हिम्मत दी, अभी तक ना खड़े हुए हैं। मेरी डकैती हुई दुकान के ऊपर 5-6 लाख की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है, ये जब हमारी नूनगी की हुकूमत आई है ना उसके बाद की बात है। और मेरे पास FIR अभी भी मौजूद होगी, अगर आप कहेंगे मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। 5-6 लाख की मेरी डकैती हुई है, ठीक है, और सिर्फ मेरी नहीं हुई,
वही डकैत उसी मार्केट में उन्होंने 2 दिनों के अंदर 8 से 10 दुकानें लूटी हैं। और ये टाइगर मार्केट ऐसी है कि हर बंदे की रोजाना 5 लाख 8 लाख 10 लाख सेल होती है। मैं समझ गया, ठीक है। ठीक है, और प्रॉफिट उसमें कितनी होती है? 10 लाख के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 10,000 20,000 प्रॉफिट होगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कुछ परसेंटेज है। अभी आप उससे 10 लाख रुपये छीन के गए, वो कैसे सीधा होगा? उसकी तो कमर टूट गई, वो नहीं सीधा हो सकता। मेरे पास SHO साहब आए हैं, उन्होंने कहा जी ये तो हम अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमें आप कुछ पेट्रोल का खर्चा दें, हम आपका जो है काम करें, भागें नहीं तुझे। क्या कर रही है गवर्नमेंट? कुछ नहीं कर रही। अगर आप बेसिकली हमसे पूछे ना, गरीब आवाम से, गरीब बंदा जी पिस गया, तबाह हो गया, मर रहे हैं। कोई बंदा जो है ना घर से निकलता है अपने घर के हालात देख के, ठीक है, वो जब घर देखता है ना कि घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, बाहर आके देखता है कि काम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, उसका दिल यही है कि घर जाकर फांसी ले लो, मर जाओ। कई बंदे इस तरह रोज़ हम देखते हैं, कोई गोलियाँ खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है। क्यों कर रहे हैं? देखें कि ये इंसानियत की बातें, कई चीज़ें जो है। व्यूअर्स, अल्लाह अपने बीबी सलाम के साथ कि हम सबके लिए सानिया पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के